Adverbs. Adverbs. Adverb, okay. Adverbs. Okay, just a moment. So all kinds of adverbs were also done. So today we are moving to the exercise. Okay. Now in these sentences you have to find the adverb and you also have to mention the kind of it. Okay. मैम आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है. Okay. Yes, ma'am. Now it's clear. मैम आप थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना कैमरा. ऊपर का फर्स्ट सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा. श्लोक पटेल कौन है? श्लोक पूरा तो यहाँ तक दिख रहा है. श्लोक यस मैम दिख गया. कैमरा ऑन रखना. धारा मोदी, ऋतुवा पटेल, Yes, ma'am. ये जाना हमारा क्लास.
करीना मैम आपको होस्ट बना दिया मैंने, ध्यान रखना। Okay. Okay, first do these many. Ma'am, 1 minute. So, okay, shall I discuss? Ma'am, 2 minutes. Okay. Yes, ma'am.
Okay, now see the first one. She had undoubtedly cleared the confusion. Yes. Untouchable. Huh? Undoubted. Confusion. Undoubtedly, that is correct. And the kind. See, question कैसे करेंगे? How she had cleared? How? Adverb of manner. Now, how का क्या आंसर था? How किस में पूछते थे? Adverb of manner. Manner. Yes, adverb of manner. Now, second, Mr. Bruce is certainly using his forked tongue in order to prove his false statement. Using. Huh? Certainly. Using. Certainly. 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 So, इसका क्या है? कौन सा kind है? Adverb of How manner. Mr. Bruce is using. How Mr. Bruce is using? Certainly. Adverb of manner. How का आंसर है? इसका मीनिंग क्या है ये? Manner. Now third, Dick is slowly trying to understand the difference between chalk and cheese. Slowly. Slowly. कौन सा kind है? Adverb of manner. Yes, correct. It is adverb of manner. अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ कि this is adverb of manner. I have told you there is no space to write. You can write. Okay. Now fourth, she is extremely sorry for building castles in the air. Ma'am, extremely. Extremely. अब ये extremely कौन सा है? Extremely का याद है Degree. आपको बताया था? हाँ? Quantity. Degree. नहीं. Degree. डिग्री याद है बताया था कि एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन था तो वो किसका था डिग्री का सौम्य अभी आप ये कर लेना आपको कितना बता रही हूँ क्योंकि भी आई कैन नॉट रीस्टार्ट कितना करो वो मैम ऐसा था ना कि मेरी मम्मी घर पे नहीं थी तो मेरे को पता नहीं था तो मैं है ना 2:30 को ही करता था इसलिए मुझे पता नहीं था मेरे नाना नानी को कोरोना हुआ है ना इसलिए मम्मी उधर है। ठीक है कोई बात नहीं अभी तुम इतना कर लो फिर कभी चांस होगा तो मैं बीच में रिपीट कर दूंगी then you will come to know what adverb is. You have been playing devil's advocate since morning. Playing. हाँ Playing. playing कैसे होगा that is verb. एडवोकेट Advocate noun है भाई क्या बोल रहे हो आप लोग advocate person मतलब नाम Playing. सिंस since का है when कब से कर रहे हो आप कब से प्ले कर रहे हो कब मतलब when मतलब किसका है आंसर Ma'am, time. टाइम now 6 I see him occasionally behaving like a dog in anger. Occasionally. हाँ occasionally ठीक है तो कितनी बार देखते हो कभी कभी कितनी बार I see him मैं देखता हूँ उसको कितनी बार देखता हूँ कभी कभी तो कितनी बार यानी हाउ मेनी किस में आता था Adverb of frequency. नंबर he was rather innocent rather मतलब ये है कि कितना ज्यादा innocent है यानी कि डिग्री है मैंने डिग्री आप लिख लो अपने आप डिग्री लिख दिया मैंने
He was unintentionally making his eyes in the party. Unintentionally. ये है क्या? Frequency. हाँ? Adverb of manner. Manner, correct. The judge intentionally turned a blind eye from the case. Intentionally. Yes. Intentionally. Adverb of manner. Manner, yes. She was never honored as a crowning glory. Crowning. No. Ma'am, Verb glory. Verb के बारे में कोई वर्ड बता रहा है? Honored. Never. ये है कि कब? When she was honored. Never. When का क्या था? Time. Time. Shall I rub now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाते दिन Mute. Can we do Zoom? हाँ? और जूम करोगे तो फिर बहुत कम सेंटेंस आएंगे. Enough है इतना. आप लोगों की साइड से नहीं होता है जूम?
Okay, do this much. प्रेपोजिशन किया था हम लोगों ने? नो मैम। मैम we know. Done? No ma'am, Yes. last one. Okay. I'm done. Chalo. Yes, in 11th. Already. Huh? already, Already. So when time, he is time, correct. She is honestly earning her honest penny. Honestly. 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 Manner. manner, Manner. How she is earning? Manner. This is the shop where you can buy the grammar book. Grammar. Grammar class? Where? Place. Yes. I shall try to clear the confusion tomorrow. Tomorrow. Yes. time, Time. time, Time. You are very busy in your study. You are very busy. How much busy? manner, नहीं, how much? To what extent? How much? कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा. तो ये क्या है? Degree. Yes.
Gary was too late to attend the meeting. Late. No. Late. Two. Two. इसका क्या आएगा? Time. डिग्री. बहुत ज्यादा लेट. कितना लेट? बहुत ज्यादा. To what extent? किस हद तक लेट? बहुत ज्यादा लेट. Dick, however, will try to approach you regarding this project. Approach. है? Approach. ना ना ना. Regarding- होता है ना, जब टू लिखा होता है इसका मतलब दिस इज V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म. Degree. वर्ड तो बताओ पहले. Regarding. ना. However. Yes. However. क्या है इसका? Degree. Manner. How did try? किसी भी तरह करके. She generally leaves no stone unturned during the office time. No. During. Huh? Generally. Generally. Time. नहीं, time थोड़ी है. Frequency. Manner. Frequency. Frequency में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो. कितनी बार, बहुत बार. जनरली का मतलब आमतौर पे. नहीं गाना नहीं आएगी. This storybook has been written carelessly. Carelessly. Manner. Manner. After failing 100 times, he ultimately decided to try for the last attempt. Ultimately. Ultimately. Manner. 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 We're done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now, adverb is done. Another topic is now what is preposition? Prepositions are words which are placed before noun and show the relation between noun and other words. Okay? आया समझ में? ना preposition क्या होता है? Noun से पहले हम उसको यूज करते हैं most of the time and वो ये बताता है कि noun और pronoun का बाकी सारे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं इसमें? इन,
बहुत सारे होते हैं, ये थोड़े से मैंने लिख दिए हैं, बाकी और भी है एक्सेट्रा। राइट दिस दीज मैनी। डन। Yes, ma'am. Now you have to fill in the blank. Okay. Ocean.
Okay. Do these many first. Ma'am, done. Done? Yes, Ma'am, ma'am. 1 minute. Yeah, okay, I'm waiting. Ma'am, last one. So shall I start? Yes. Yes. Okay. So the first one is Jack acted. On my advice. On. Yes, On. correct. On my advice. Second, Two. this road leads dash Cuttack. Huh? Into. Two. 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 The girl laughed dash the joker. On. On. At, On the joker. at. We should not look dash the things which belong to others. At. 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 Correct. At. He lives dash Todapur dash Delhi. In. Both In. blanks. In. O- Nahi. near. Both blanks. Near नहीं. and in. जब कोई जगह किसी दूसरी जगह के अंदर होती है ना, तो जो छोटी जगह है वहां पर एट लगता है और जो बड़ी प्लेस है वहां पर इन लगते हैं. जैसे अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में. तो छोटी जगह कौन सी है? अहमदाबाद या गुजरात? Ahmedabad. Ahmedabad. तो Ahmedabad. अहमदाबाद के पहले एट लगेगा और गुजरात के पहले इन लगेगा. ऐसे ही टोडापुर जो है वो दिल्ली में है, तो जो छोटी जगह है टोडापुर वहां से पहले एट आएगा और दिल्ली से पहले इन आएगा. एट टोडापुर इन दिल्ली. Yes. He was run down a car. In. नहीं, by a car. The file was lying dash the table. On the table. On the table. The mouse was On. jumping dash On the the table. table. On the table. On. There is a forecast dash On rain. rain. Of rain. On. He is like a frog dash the well. In. Under. In under कैसे? In. ठीक है? So yes, we have done the preposition. Now I will send you the worksheet regarding this. Okay? Now if you have any query, you can ask. No, ma'am. मैम मुझे डिग्री मैनर और वो पता नहीं चला. कौन है ये? मैम हाँ? सौम्या. हाँ सौम्या, देखो डिग्री वो सब जो है ना वो एडवर्ब के काइंड्स हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसा वर्ड जो वर्ब में कुछ ऐड करे, वर्ब के मीनिंग में ऐड करे. जैसे अगर मैं बोलूं शी रन्स फास्ट, तो इसमें वर्ब कौन सा है? फास्ट.
हाँ, वर्ब Run. रन्स। अगर हम पूछे हाउ शी रन्स तो क्या आता है आंसर? How she runs. Fast. फास्ट। ओके, सो ये जो फास्ट वर्ड है ना, इसने वर्ब रन्स जो है ना, इसमें कुछ और ऐड कर दिया। सो फास्ट इज एडवर्ब। ठीक है, अब जब हमने क्वेश्चन पूछा तो हाउ से पूछा था, सो हाउ वाला जो आंसर आता है ना, वो मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, देन फिर है नंबर। नंबर मतलब हाउ मेनी टाइम्स, जैसे कि शी विजिट्स हर ग्रैंडमदर ट्वाइस अ वीक। तो हाउ मेनी टाइम्स शी विजिट्स? Twice. ट्वाइस। तो ट्वाइस क्या हो गया? नंबर। ठीक है, उसके बाद है कि टाइम। हाँ, टाइम वाला। ठीक है, अब टाइम में क्या था कि कब, व्हेन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्लीन योर रूम इमीडिएटली, ठीक है, तो व्हेन टू क्लीन रूम? Immediately. इमीडिएटली, यानी कि अभी की अभी। तो व्हेन से जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर आता है, वो टाइम होता है। फिर उसके बाद है प्लेस। ठीक है, अब Where. प्लेस में क्या होता है? Where. जैसे हाँ, वेयर का आंसर होता है, जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर हर आउटसाइड। सो वेयर आई वॉज वेटिंग? Outside. Outside. तो आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब क्या बचा? डिग्री। डिग्री का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट, कितना ज्यादा। जैसे कि द कॉफी इज एक्सट्रीमली हॉट, कॉफी बहुत ज्यादा हॉट है। कितनी हॉट है? हाउ मच? Extremely. Extremely. एक्सट्रीमली। सो दिस इज डिग्री। बहुत ज्यादा, बहुत कम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एक्सट्रीमली उसमें आते हैं डिग्री में। अब क्या बचा? कौन सा बाकी रहा? How. हाउ तो मैनर बता दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब आप देख लेना, कहीं से सर्च करके ट्राई करना कि आपको पता चल जाए, और अगर होगा तो मैं ट्राई करके नोट्स भेज दूंगी आपको, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के और एडवर्ब के। ठीक है, और कुछ क्वेरी है किसी को? Oh, ma'am. No, ma'am. अच्छा, स्कूल से हो गई है सबकी वेकेशन स्टार्ट? No, Yes, ma'am. ma'am. 7th. Yes. No, ma'am. 7th May. 7th Ma'am, from Friday। tomorrow. From 7th May. अच्छा, ओके, चलो, किसी की कल से स्टार्ट हो गई है, मतलब नेक्स्ट वीक आज तक हमारा सबकी हो last जाएगी, नेक्स्ट वीक हो जाएंगी मीटिंग। ठीक है ना? चलो, ओके, बाय देन। यू आर हैविंग अनदर सेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, आपका दूसरा सेशन होगा स्टार्ट। लेट मी चेक, जस्ट अ मोमेंट। साक्षी मैम, आर यू देयर? साक्षी मैम? Yes, ma'am. हाँ मैम, आई एम लीविंग द मीटिंग, सो आई एम Yes, मेकिंग यू होस्ट। Yes, ma'am.
तीर्थ बेटा, यस मैम। तीर्थ आपका रोल नंबर नोट करो और रोल नंबर लिखो। जस्ट अ मिनट। यस बताइए। देखो कैपिटल A यस 871 871। और अभी रीनेम कर दो बेटा ओके और फिर पीछे नाम लिखना। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आपको होस्ट बना दूं? यस, और मुझे स्पॉटलाइट भी कर दीजिए मैम। यस। नए स्टूडेंट है तीर्थ। तीर्थ प्रजापति इज अ न्यू स्टूडेंट। यस मैम। वेलकम टू SPGT dear. You are from which school? If you are from which school? मैम आई कांट हियर यू। Check with your net. बाकी सब को मैं ऑडिबल हूँ? Yes, ma'am. हाँ तीर्थ, डन मैम। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? Everyone on your video. तीर्थ, श्लोक, दिया, धारा. मैम जस्ट अ मिनट, आई एम फेसिंग इन डिफिकल्टी इन इंटरनेट। Yes, okay. Check it बेटा. ओके डन मैम। No, आपने मुझे स्पॉटलाइट नहीं किया मैम। मैम आपको होस्ट बना दिया तो अभी स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है, आप मुझे फिर से होस्ट बनाइए तो मैं करती हूँ। ओके। डन मैम। ओके मैम। स्पॉटलाइट वीडियो। Yes. Yes, done मैम। ओके नाउ मेक होस्ट। Yes. डन। Done. ओके मैम। Okay. Thank you. Okay. So today we are going to do what? New chapter. Geography, right? और तीर्थ next, अपना रोल नंबर नेम करो। तीर्थ Did you have to change your roll number, बेटा? यस यस मैम, आई एम चेंजिंग इट। हाँ, okay. ओके। तीर्थ आपका सब हो जाए फिर आपको वीडियो भी ऑन करना है। रुतवा बेटा आप भी वीडियो ऑन कर दो, सिर्फ आप ही बाकी हो। यस तीर्थ हो गया। अच्छा तीर्थ, यू आर फ्रॉम व्हिच स्कूल बेटा? योर नेट इज नाउ वर्किंग प्रॉपर्ली? यस मैम। यू आर फ्रॉम व्हिच स्कूल? केंद्रीय विद्यालय सैक वस्त्रापुर। ओके, एंड आपके स्कूल में अभी ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है? यस मैम। तो स्कूल में सोशल साइंस का, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो आपके स्कूल में सोशल साइंस का पोर्शन कितना खत्म हुआ है? तीनों सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब यहाँ पे हमारे तीनों सब्जेक्ट में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, पर नेक्स्ट वीक से मैं रिवीजन शुरू करूंगी। रिवीजन में ऐसे होगा कि आपके लिए वो चैप्टर खत्म हो जाए और मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो आंसर्स देंगे मुझे, तो उनका रिवीजन होगा और आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, दक्ष, अंश, धारा, दिया, रुतवा, वेदांत, ये चैप्टर तो खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, राइट? हाफ एन आवर हमें ये ज्योग्राफी जो शुरू कर रहे हैं वो खत्म करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री से करना है शुरू की ज्योग्राफी से शुरू करना है। हम वापस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और 2 रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक आपका होमवर्क ये है सभी का, तीर्थ आपको भी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रीड करके आना है।
जो भी मैं समझाऊंगी आंसर्स दूंगी, आप टेक्स्ट बुक में से देख के मुझे आंसर्स दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि बंद वाली एग्जाम है। ओके, ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम इट वुड बी टू रिवाइज इट। क्लियर? और Okay, मेरे ma'am. जितने भी पुराने स्टूडेंट्स है, ओके मैम। कोई भी एब्सेंट रहेगा, आंसर नहीं देगा तो उसका होमवर्क डबल हो जाएगा। वो पूरा टेक्स्ट बुक का चैप्टर उनको देख के लिखना पड़ेगा, ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक का ही, नॉट द क्वेश्चन आंसर्स। फुल टेक्स्ट बुक चैप्टर यू हैव टू राइट। कभी लिखा है स्कूल में? किसी ने लिखा है चैप्टर? Yes, ma'am. लिखा है ना? नो मैम। नहीं लिखा। Ma'am, poem. पोयम लिखी ना, पनिशमेंट स्कूल में ऐसी मिलती है, पूरी की पूरी नहीं मैम. नहीं मिलती। ओके, पर हमें करना भी नहीं है ना? हम सब प्रेजेंट रहेगा और हम सब आंसर्स देंगे। ओके, चलो। नाउ तीर्थ, as I'm going to start a new chapter, Geography 3. The next week मैं आपको सारे आपके जितने भी स्कूल में चैप्टर्स हुए, मैंने जितने भी खत्म किए, हम वो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। Now the third chapter is lesson number 3, are changing earth. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ, दैट इज लिथोस्फीयर। ठीक है? कितने डोमेन है और कितने डोमेन्स है? Four. Which are the 4 domains? Lithosphere, Lithosphere, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। Yes, right? तो फोर्थ चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वाटर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे डोमेन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पहला स्फीयर लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अब ये जो लिथोस्फीयर है, लिथो का मतलब होता है, इट इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है हार्ड रॉक। ठीक है? इट इज द हार्ड रॉक। स्फीयर का मतलब होता है लेयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है? लेयर। तो इस जो लिथोस्फीयर में है, उसमें हमने जैसे लेसन नंबर 2 में पढ़ा था कि अर्थ के नीचे 3 पार्ट है। कौन से वो 3 पार्ट है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। यस। अब ये जो इनर पोर्शन है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं और आउट ऑफ द अर्थ उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो बस हम यहाँ पे इस लिथोस्फेरिक प्लेट में यही चीजें पढ़ने वाले हैं। ये लैंडफॉर्म्स कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, ये अर्थ में जो चेंजेस, नेचुरल चेंजेस होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है? अब ये जो अर्थ के नीचे है ना, उसमें काफी ऐसे लेयर्स होते हैं। इस लेयर्स को प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। कैसी प्लेट्स होती है? ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। और ये जो प्लेट्स होती है, अभी भी एट दिस मोमेंट ऑल्सो ये प्लेट्स में थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट्स होती है। दिस प्लेट्स कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ये ऐसे 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 मूव होती है, और 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लेयर्स में ये प्लेट्स ऐसे नीचे होती है। हर एक प्लेट्स के बीच में मोल्टन मैग्मा होता है। व्हाट इज मोल्टन मैग्मा? लावा। यस, लावा भी नहीं, उसको मैंने स्पेसिफिक लावा ब्लॉक. नहीं, मैंने स्पेसिफिक एक वर्ड बताया था आपको। वेदांत याद नहीं है? मेल्टेन रॉक। क्या होता है वो? मेल्टेन रॉक। यस यस, मोल्टन रॉक यानी पिघला हुआ रॉक। उसको मैग्मा इसीलिए बोला जाता है कि नीचे बहुत टेम्परेचर गर्म होता है, तो वो रॉक कैसे हो जाता है? पिघल के ये बाहर आता है, तब ये मैग्मा लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके? तो ये हर एक प्लेट्स के बीच में हॉट मोल्टन मैग्मा होता है, प्लस एयर प्रेशर होता है हर एक प्लेट्स के बीच में। ओके? सो देयर आर नंबर ऑफ प्लेट्स। इस सारे प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अब हम शुरू करेंगे और मैं धीरे धीरे आपको इसमें से पॉइंट्स अंडरलाइन करवाती जाऊंगी और समझाऊंगी। तीर्थ, you have a textbook with you ना बेटा? Yes, ma'am. You have to start reading lesson number 3, are changing earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as
the lithospheric plates. You will have surprised to know that this blade move around very slowly, just a few millimeters each year. This is become the of the movement of the molten magma inside the earth. The Molten. molten magma inside the earth moves in a Circular manner, motion, right? circular Okay. motion Yes. Now see. as Yes. Okay. हाँ बोलो बोलो बेटा. as slowly shown in the activity. ओके बस अब मैं पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके अब ये जो लिथोस्फीयर की इनसाइड का है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स है, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला जाता है. ये प्लेट्स कंटिन्यूस मूवमेंट में होती, इसलिए मूवमेंट्स पे होती कि इसके अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा. मोल्टन मैग्मा कैसे मूव होता है, सर्कुलर मूवमेंट में मूव होता है, राइट. हर एक के बीच में है और सर्कुलर मूवमेंट में ऐसे घूमता है, राइट. अब ये जो मूवमेंट है और ये प्लेट्स है, इसमें कुछ चेंजेस आती है, वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ग्लॉसरी नीचे दी गई है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स, Earth's crust consists of several large and some small rigid यानी कि बहुत ही solid, irregular shaped plates which carry continents and the ocean floor. यानी कि ये प्लेट्स कहाँ पे पाई जाती है, कंटिनेंट्स में और ओशन फ्लोर में. आज ये ग्लॉसरी लिखना है सबको. लिथोस्फेरिक प्लेट्स, व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स? ओके, तीर्थ कंटिन्यू. Yes, ma'am. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of the force which cause them. The force which act in the interior of the earth are called as endogenic force. The force that work on the surface of the earth are called as exogenic force. force. ओके वेट ना, ये जो प्लेट्स में कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा, जिसकी वजह से अर्थ में हमें कुछ चेंजेस होते हैं. अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर, राइट. अंदर यानी कि एंडो, सी एंडो का मतलब इनसाइड, एंडोजेनिक, एक्स का मतलब बाहर, एक्सोजेनिक फोर्सेस. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो सारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको एंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है. और अर्थ की सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है. अब आपको अंडरलाइन करना है थर्ड लाइन से, द फोर्स व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स. ये सारे डेफिनेशन में ही लिखना है. द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. तीर्थ सुनो, अभी ये सारी चीजें मैं क्यों अंडरलाइन करवाती हूँ, जितना भी मैं चैप्टर समझाती हूँ उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ. वो आपका होमवर्क होता है, वो आपको नोटबुक में लिखना होता है. सेकंड, जब पूरा चैप्टर खत्म होता है अंश, तो आपका होमवर्क क्या होता है, टू राइट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दी लास्ट में जो चैप्टर एंड होता है तो लास्ट पेज में सब दिया होता है ऑब्जेक्टिव्स लाइक. यस, वो आपको करना होता है. थर्ड चैप्टर खत्म होते हैं, यहाँ से आपको एक वर्कशीट मिलेगी, वो वर्कशीट करनी है. ठीक है, पीछे की जो एक्सरसाइज है वो मैं हर बार नहीं बोलूंगी चैप्टर खत्म होगा तब, आपको अपने आप कर देनी है. और पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको वर्कशीट भी मिलेगी. ठीक है,
और डे टू डे जितना मैं एक्सप्लेन करूंगी वो अंडरलाइन करना है, वो आपको नोट डाउन कर दे। क्यों? क्योंकि जब मैं वर्कशीट में भेजूंगी तो आपको कुछ होगा, और वीक में एक बार हम वर्कशीट भी डाउट सेशन में सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो आपको मैंने अंडरलाइन भी ना करवाया हो और टेक्स्ट बुक में से भी हो, बाहर से भी हो, तो वो भी आपको मैं आंसर्स ढूंढ के दे दूंगी। ठीक है तीर्थ? तो आज अभी तक मैंने 3 चीज आपको बोली है, 3 डेफिनेशन, लिथोस्फेरिक प्लेट, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अब नीचे आपको टेबल दिख रहा है, ये Yes, टेबल भी ma'am. आपको करना है। Yes, ma'am. ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे एंडोजेनिक फोर्स की एग्जाम्पल है सडन फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स एंड बिल्डिंग माउंटेन्स। जब प्लेट्स ऊपर की तरफ बहुत प्रेशराइज करती है तो अपने आप ऐसे माउंटेन, ये जितने भी माउंटेन है ना, ये ऐसे ही फॉर्म होते हैं, या तो वॉल्केनिक से, कुछ माउंटेन को वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म किए होते हैं, कुछ प्लेट्स की वजह से वो सरफेस लेवलिंग ऊपर आते आते माउंटेन्स हो जाते हैं। ठीक है? तो एंडोजेनिक में दो, हाँ यस बेटा तीर्थ, व्हाट? हिमालयन रेंजेस के जैसे। यस, रेंजेस, यू आर राइट। सो एंडोजेनिक में 2 है। कौन से 2 है? सडन फोर्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन फोर्स में वापस 3 है। क्या आता है? अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होता है, लैंडस्लाइड होता है। ये सारी चीज प्लेट्स के वजह से और नीचे जो मोल्टन मैग्मा के सर्कुलर मूवमेंट्स के वजह से होता है। ठीक है? डायस्ट्रॉफिक फोर्स में एक होता है बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। अंश रिपीट जो मैंने बोला, एंडोजेनिक फोर्स में कौन से 2 फोर्सेस है? Sudden force and diastrophic force. सडन फोर्स में कौन से 3 चेंजेस आते हैं? Earthquake, volcano and landslide. ओके। अब एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के सरफेस लेयर में होता है, इसमें होता है इरोशनल एंड डिपोजिशनल। इरोड होना, इरोड यानी धुल जाना, रिमूव होना, डिपोजिशन यानी डिपोजिट होना, जमा होना। किससे होता है? रिवर से, विंड से, सी वेव से और ग्लेशियर्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ एंडोजेनिक पार्ट पहले पढ़ेंगे और फिर दूसरा पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है? एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है? इरोजनल, इरोड यानी धुल जाना, डिपोजिशनल यानी जमा होना। किससे होता है? रिवर से, विंड से, सी वेव से और ग्लेशियर से। धारा रिपीट, एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है? मैम इरोजनल एंड डिपोजिशनल। किससे होता है? उसके एजेंट्स कौन है? मैम रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ओके। दिया, Yes, ma'am. earth movements are divided into 2 forces. Which are that 2 forces? Endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces are seen in where? Under the Earth's surface. Interior of the Earth's surface. And exogenic forces are seen where? On the Earth's surface. Surface of the Earth's surface. Now, this Earth movements में endogenic में कौन से 2 टाइप के forces होते हैं? Sudden forces and diastrophic forces. And in sudden forces? Earthquake, volcano and landslides. Diastrophic forces? Building mountains. Exogenic forces में क्या होता है? Erosional and depositional. With the agents कौन करता है ये सब? River, wind, sea waves and glaciers. Done. Clear? यहाँ तक आप सबको clear है? Yes, ma'am. एंडोजेनिक फोर्सेस में कई बार सडन फोर्स, सडन मूवमेंट होती है। अर्थक्वेक क्या हमें फोन करके आता है? No. सडन है ना, नेचुरल डिजास्टर इट इज। नेचुरल डिजास्टर ना, हमें पता नहीं, अभी मान लो हम बैठे और अचानक से अर्थक्वेक आने लगे तो सब क्या होने लगता है? हिलने लगता है ना? तो ये जो सडन मूवमेंट होता है और काफी अर्थ में डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, इसे अर्थक्वेक बोलते हैं और वोल्केनो बोलते हैं। अर्थक्वेक जो होता है वो जो ये जो दोनों ही ये अंदर के
लिथोस्फेरिक प्लेट्स में और मोल्टेन मैग्मा की वजह से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वॉल्केनो। ये डायग्राम भी आपको आज करना है और मैम उसका ड्रॉ करना है। डेफिनेशन ये आएगा, डिस्क्राइब अ वॉल्केनो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मैं समझाती हूँ, उसके पहले वर्ड ओरिजिन आपको दिया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां पे रीड कर दो, लिखना नहीं है उसको, रीड। यहाँ पे देखो, एंडो का मतलब है इनसाइड, एक्सो का मतलब है आउटसाइड, जेनिक का मतलब है ओरिजिन। इस तरह से ये वर्ड फॉर्म हुआ, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। क्लियर? रीड करना है आपको, Yes, टेक्स्ट ma'am. बुक में से, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम वॉल्केनो की बात करेंगे। सबको वॉल्केनो तो पता ही है ना, वॉल्केनो क्या होता है? चलो। Then from which the lava come out? पर क्यों लावा क्यों बाहर आता है? ऐसा तो क्या होता है? Of the Heat and heat of pressure. the हाँ, तो वॉल्केनो क्या होता है? लावा कैसे बाहर आता है? ऐसे अपने आप बाहर आ जाता है। वॉल्केनो होता क्या है? pressure of air. मैम इरप्ट होता है, फटता है, इरप्ट होता है ना, उसको Yes, ma'am. इरप्ट बोलते हैं, राइट? बस अभी आप सबको ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, ma'am. तो Yes, देखो, ma'am. जो रेड कलर का पोर्शन अर्थ की इंटीरियर है, उसमें लिखा है मैग्मा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दो लेयर्स दिए, क्रस्ट, मेंटल, यानी कि ये मैग्मा मेंटल तक होता है। ठीक है, रेड इसीलिए दिया है क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो हमेशा कोई भी चीज गर्म होती है, रॉक गर्म पिघलता हुआ, तो वो रेड कलर का दिखेगा ना हमें। हमने कई बार कार्टून्स में और उसमें देखा है ना, नीचे एकदम गरम गरम फायर जैसा हमें दिखाते हैं। एक्चुअली दैट इज अ मोल्टेन मैग्मा। ओके, अब आपको टनल जैसा दिख रहा होगा, Yes, राइट? इसको बोलते हैं टनल नहीं, वॉल्केनो के अंदर का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट, VENT, वेंट। इतना ही पोर्शन होता है जिसमें से ये लावा इरप्ट होके बाहर आता है। पूरा सा एक टनल जैसा बना हुआ होता है उसका। वॉल्केनो का हमने कई बार पिक्चर्स में और मूवीज में दिखा ना, ऐसे गोल वाला जैसा दिखाया होता है जिसमें से इरप्ट होके बाहर आता है, उसको ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्केनो का ओपनिंग। ठीक है, आपके इस बुक में सारा एक्सप्लेन नहीं किया आपको। उसको बोलते हैं क्रैटर। जो वॉल्केनो का माउथ होता है, मुंह, उसको क्या बोलते हैं? क्रैटर। crater. ओके, इस ओपनिंग में से लावा बाहर आता है, इरप्ट होके गैस बाहर आता है और ऐश आता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है आपको नहीं समझाया गया है, पर आज मैं आपको समझा रही हूँ, और कैसे अलग अलग टाइप के वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि क्रस्ट और मेंटल है और मैग्मा है। क्रस्ट और मेंटल यानी कि ये सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही होते हैं। मैंने आपको समझाया कि हर एक प्लेट के बीच में क्या होता है? मोल्टेन मैग्मा होता है। अब उसके साथ हमने देखा कि गैस और ऐश भी बाहर आया। ठीक है, ऐश यानी कि यही जो पत्थर होते हैं, उसी कुछ पत्थर जो अभी तक पूरे पिघले नहीं होते, बाहर आते आते बाहर आते हैं। एयर होता है अंदर और अलग अलग गैस भी होता है उसमें से जो बाहर आता है। अब जब ये मैग्मा ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में घूमता है, तब उसके साथ एयर प्रेशर बढ़ जाता है। एयर प्रेशर को जगह नहीं मिलती है अंदर को, ये हवा, ये एयर मैग्मा को अंदर प्रेशराइज करती है, उसपे कंप्रेस यानी दबाव डालती है, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, उसको जगह नहीं मिलती तो उसको बाहर, वो ऊपर आता है जगह ढूंढने के लिए, और वो गोल गोल घूमते घूमते एयर प्रेशर के साथ इतने ऊपर आता है कि फिर वो इरप्ट होता है। अब इरप्शन डिपेंड करता है वॉल्केनो के क्रैटर के ऊपर। क्रैटर यानी उसके माउथ के ऊपर। अगर माउथ उसका ओपनिंग अगर छोटा है तो वो जोर से इरप्ट होता है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है, राइट? इट विल इरप्ट वेरी मच। ठीक है, और वो दूर तक फैलेगा। और अगर उसका ओपनिंग बहुत ही बड़ा है तो वो सिर्फ लावा ऐसे फ्लो होके बाहर आएगा। तो वॉल्केनो इरप्शन डिपेंड करता है कि वो वॉल्केनिक माउंटेन का ऊपर का क्रैटर यानी माउथ कितना छोटा बड़ा है। समझ में आया? Yes, ma'am.
यस मैम। ओके, अब मैं समझा रही हूँ, फिर आपको सिर्फ मुझे डायग्राम वाला पार्ट वापस मैं पूछूंगी और आपको बोलना है, ठीक है। अब ये इस तरह से वॉल्केनो 3 टाइप के होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो यानी जो बार बार इरप्ट होता रहता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी कि जो एक बार इरप्ट हुआ है पर अब पता नहीं कब इरप्ट होगा, कौन से साल में इरप्ट होगा, कब इरप्ट होगा, वो सो रहा है, डॉर्मेंट बोला। और एक थर्ड है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि बहुत साल पहले हुआ था पर उसके अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है वो ठंडा हो गया है। अगर वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, वापस पत्थर बन जाएगा। इग्नियस रॉक। यस, वापस रॉक फॉर्म हो जाए और वो अभी कभी भी इरप्ट नहीं हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया है वो। अंडरस्टूड? पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप के वॉल्केनो हमें देखा जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहां पर है, कौन बताएगा मुझे? जापान। इंडिया में है कहीं पे वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो? मैम साउथ में। नो मैम। मैम इन वेस्ट आइलैंड वेयर इट इज अंडमान निकोबार। यस, अंडमान निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो है, यू आर राइट। ओके, अंडमान निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो है। माउंटेन्स होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्प्स, ये सारे वॉल्केनिक एक्टिव माउंटेन्स हैं। अब जहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वहां पे आजू बाजू लोग रहते हैं क्या? मैम यस, तो उन्हें दूर रखा जाता है यहाँ से। सिर्फ डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के आजू बाजू लोग रहते हैं, और डॉर्मेंट के भी कुछ डिस्टेंस में रहते हैं और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के आजू बाजू रहते हैं। मैं अभी आपको ये 3 नाम नहीं पूछूंगी क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में जहां से मोल्टन मटेरियल इरप्ट होके आता है। डायग्राम कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि मैग्मा क्या है, वेंट क्या है, क्रैटर क्या है, लावा क्या? वेदांत, आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। Vent is the small passage in the middle of the volcano. ये बेटा मैग्मा से शुरू करना है, मैग्मा नीचे से आपको डायग्राम शुरू करना है। मैग्मा क्या है? Okay. Magma is the lava type. नहीं, लावा नहीं बोलना है, वो इरप्ट होके बाहर आता है तब लावा है। मैग्मा क्या है? मोल्टन रॉक, Molten. ठीक है। फिर वेंट क्या है? Ma'am, it is a like of hole from which the lava flow down. यस। क्रैटर क्या है? The mouth of the volcano. Lava come Yes. out. From the lava comes क्लियर? up. तो आज आपको लिखना है a volcano is a vent in the earth's crust। अर्थ के क्रस्ट में एक ओपनिंग है जहां से मोल्टन मटेरियल इरप्ट होता है सडनली। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन किया पर वो लिखना नहीं है, ये 3 लाइन और डायग्राम करना है। आपको साइंस में कई बार प्रोजेक्ट दिया है ना, वॉल्केनो का प्रोजेक्ट, No, ma'am. वो गोला डालते उसको डालते फिर मेंटोस ऐसे- डालना होता है। हाँ, और वो वॉल्केनो आता है। अभी तो स्कूल में सामने से बोलते कोई भी वॉल्केनो का मत करना क्योंकि सब वही करके आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है तीर्थ? वीडियो ऑफ नहीं करना है बेटा। तीर्थ यस क्लियर हो मैम। तुम? यस मैम। ओके, अभी ऐसा दूसरा ही नेचुरल डिजास्टर हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक, भूकंप जिसको हम बोलते हैं। पता है इंडिया में, अरे अहमदाबाद में आया था, गुजरात में आया था, अहमदाबाद में, किसको पता है? तुम लोग नहीं थे पर आपके पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया था। 2001 कच्छ एंड भुज। Yes, on 26 January on a Republic Day morning 8 o'clock। Yes, ma'am. आपके पेरेंट्स को पूछना, सबके पास बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होगी उस दिन की, उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या हुआ था, सबके पास स्टोरी है उस दिन की। हाँ, हम लोग तो एक शादी में जाने वाले थे, राइट?
तो जहां पे जाने वाले थे वहां पे सामने वाला टावर पूरा टेढ़ा हो गया था। इनिशियल जब हुआ ना तो हमें लगा कि नहीं यार इतना कुछ होगा नहीं, पर जैसे जैसे हम बाहर निकले तो अहमदाबाद में अर्थक्वेक नहीं आया था, अर्थक्वेक आया था कच्छ भुज, पर उसकी इफेक्ट यानी उसका वेव्स बोलते हैं हम, वही मैं आपको समझाऊंगी। मेन जो एपिसेंटर यानी मेन जो अर्थक्वेक हुआ था वो कच्छ भुज में था, पर वो इतना बड़ा स्केल में था कि उसकी जैसे सर्कुलर में वेव्स फैलते हैं ना, वो उसकी असर हमें अहमदाबाद में हुई थी। अब ये कैसे होता है, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, रीजंस। सबसे पहला होता है ये प्लेट्स के मूवमेंट्स में। क्या होता है ये प्लेट्स के मूवमेंट्स में? ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, क्या बोलते हैं उसको? टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स ऐसे मूव होती रहती है, कई बार ये कोलाइड हो जाती है, ऐसे कोलाइड हो जाती है। जब ये कोलाइड हो जाती है तो एक बड़ा सा झटका लगता है हमारे सरफेस ऑफ दी अर्थ पे, राइट। दूसरा रीजन है यही मोल्टेन मैग्मा। मैंने बताया था हर एक प्लेट्स के बीच में भी एक मैग्मा होता है और एयर प्रेशर होती है, उन्हें जगह नहीं मिलती तो ऊपर वाले प्लेट्स को धक्का देती है। ये जब ऊपर वाले प्लेट्स को, ये माउंटेन के नीचे की बात नहीं हो रही है, मोल्टेन मैग्मा हर एक सरफेस के नीचे भी होता है, कॉन्टिनेंट के नीचे भी होता है, और ये प्लेट्स के अंदर बीच में भी होता है। तो ये मैग्मा तो मूव होती रहती है, साथ में एयर भी मूव होता रहता है, उनको जगह नहीं मिलती तो वो ऊपर वाले प्लेट्स को धक्का देती है। धक्का हुआ, ये प्लेट ऐसे मुड़ी, राइट, इसके ऊपर सरफेस है, उसने उसको धक्का दिया, राइट। धक्का देने से वापस सडन मूवमेंट, वाइब्रेशन होता है। तो दो चीज होती है, ये प्लेट्स जब ऐसे ऐसे हिलती रहती है और हिलते हिलते वो अपने आप को कोलाइड हो जाती है, तभी भी अर्थक्वेक आती है। एक प्लेट दोनों प्लेट के बीच में जो मैग्मा और प्रेशर होता है वो जब धक्का देती है तो प्लेट ऐसे मूव होती है, ऊपर वाले सरफेस को भी वो धक्का देती है, ठीक है। अर्थक्वेक होता है। अब ये जो अर्थक्वेक होता है इसमें भी 3 टाइप के वेव्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम समझेंगे जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती है और ये मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होती है, ट्रैवल। पर ये क्यों मूव होती है ये तो हमें टेक्स्ट बुक में बताया नहीं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि या तो वो कोलाइड होती है या तो वो एयर प्रेशर और मैग्मा की वजह से ऊपर के तरफ सरफेस को धक्का देती है, क्लियर। तब हमें सडन वाइब्रेशन फील होता है। पर अब ये जो मूवमेंट्स होती है अंदर जो कोलाइड होने की, और ये कितने स्केल पे है, उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है कि ये कितना इफेक्ट है उसका, ठीक है, कितने इफेक्ट में ये होता है। अगर वो धीरे से कोलाइड हुई है तो हल्का सा मूवमेंट होगा। अब मान लो आप टेबल पे पानी का ग्लास रखोगे, हल्का सा आप ऐसे इसको हिलाओगे तो हल्का हिलेगा, पर अब जोर से उसको हिलाओगे तो वो ग्लास गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। बस उसी तरह ये कितना कोलाइड हुआ और कितना धक्का दिया है फोर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कच्छ और भुज में आया था वो बहुत ही हाई था, राइट। जब वो हाई होता है तो उसके आजू बाजू जितना भी एरिया है उसमें भी उसकी असर होती है, इफेक्ट होता है, वो होता है अर्थक्वेक वेव इफेक्ट, ओके। तो धारा यू हैव टू रीड। मैम फ्रॉम सिमिलियर। यस, फ्रॉम सिमिलियर। आज मैं आपको ये इतना ही समझाऊंगी यहाँ पे अर्थक्वेक पार्ट का, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, वरना सब मिक्स हो जाएगा। यस, स्टार्ट रीडिंग बेटा। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movements start is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter
and the strength of the earthquake decreases away from the center. Okay, now listen, I'm explaining. Everyone pay attention to the diagram. मैं डायग्राम के हिसाब से समझ. पहले अर्थक्वेक क्या है? तो ये जो मूवमेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स में होती है, ये मूवमेंट के वजह से सर्फ वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन अर्थ तक आता है और इसे अर्थक्वेक बोलते हैं. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस और एपिसेंटर. नीचे जो होता है जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई उसे फोकस बोलते हैं. ठीक है. और जो सरफेस के ऊपर आता है जहां पे डिस्ट्रैक्शन हुआ, जैसे कच बुच एपिसेंटर था. ठीक है. यानी कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स या तो कोलाइड हुई या ये प्लेट्स ऊपर की तरफ किया. कौन से जगह पे? एपिसेंटर के जगह पे. ठीक है. और नीचे कहां पे हुई? फोकस, यानी कि इंटीरियर में फोकस, और जहां पे वाइब्रेशन ऊपर हुआ वहां पे एपिसेंटर. जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुई अंदर क्रस्ट में उसको फोकस बोलते हैं, और सरफेस एरिया में जहां पे अर्थक्वेक ने वाइब्रेट यानी पूरा हिलाया उसे एपिसेंटर बोलते हैं. एपिसेंटर सब में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है. अब ये एपिसेंटर कितना बड़ा था उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसके वेव्स स्प्रेड होते हैं. जैसे जैसे वेव्स दूर होते जाते हैं एपिसेंटर से, उस एरिया में डिस्ट्रैक्शन कम होता है. ओके. अब देखो डायग्राम में हमें दिया गया है, आपको ये डायग्राम नहीं करना है. यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, फोकस दिया है. देखो, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, यानी यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स या तो कोलाइड होती है या हीट और प्रेशर के वजह से ऊपर की तरफ उसको धक्का मार रही है. ठीक है. उसे सिस्मिक एनर्जी बोलते हैं. उसको अर्थक्वेक के लैंग्वेज, इसके ज्योग्राफिकल के टर्म में जो अंदर एनर्जी प्रोवाइड हुई उसको सिस्मिक एनर्जी बोलते हैं. अब एग्जैक्ट फोकस के ऊपर में एपिसेंटर है, यानी जहां पे अर्थक्वेक आया. ओके. अर्थक्वेक एपिसेंटर के आजू बाजू आपको देखो ये सर्कल में, सर्कुलर मूवमेंट में दिख रहा है, ये सिस्मिक वेव्स होते हैं. यानी कि कच बुच वाज द एपिसेंटर एंड द सिस्मिक वेव्स वाज Ahmedabad. Clear? Yes, ma'am. Everyone clear from this diagram? Now what you have to write. When the lithospheric plate move, the surface of the earth vibrate. Vibration can travel all around the earth. This vibration is called the earthquake. Definition of earthquake. मैम Wait. Yes. हो गया definition of earthquake? Yes, मैम ma'am. आई हैव अ डाउट. उसके बाद the place in the crust where the movement start is called focus. ये भी definition. उसके बाद the place on the surface above the focus is called epicenter. Done? Okay. Now to your right hand side, do you know tick and write read? There are three types of earthquake waves. Now see, earthquake waves क्या waves होते हैं? जो एपिसेंटर से स्प्रेड होके दूसरे रीजन्स को इफेक्ट करते हैं. इसमें तीन टाइप के वेव्स होते हैं, P, S और L. ठीक है. कौन से? P, S और L. P waves या longitudinal waves, S waves या transverse waves, और L waves यानी के सरफेस वेव्स. ये वेव्स यानी कि क्या, कैसे बताते हैं कि कितना एपिसेंटर स्ट्रॉन्ग है, इस हिसाब से वेव्स आता है. ठीक है. Okay. Now see, P waves,
S waves and L waves. ओके, ये जो P waves है ना, ये ओशन में नहीं आता है, सिर्फ कॉन्टिनेंट में आता है। ये इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यानी कि एपिसेंटर जहां पे कम होता है तो वो कम तक स्प्रेड होता है, ठीक है, और वो थोड़ा ही हिलता है। यानी अगर कच्छ-भुज में बहुत एपिसेंटर स्ट्रांग नहीं हुआ तो हमें सिर्फ फील होगा कि अच्छा अर्थक्वेक आया, हमारे अहमदाबाद में भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। फिर एस वेव थोड़ा ज्यादा हिलाता है, यानी पी वेव से थोड़ा स्ट्रांग है, ये भी सिर्फ कॉन्टिनेंट में आता है, सिर्फ थोड़ा सा मीडियम फील होता है, ठीक है। एल वेव, लॉन्गिट्यूडल बॉडी वेव या वी कैन से एल वेव, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है? ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट? और एपिसेंटर ज्यादा होता है तब ये ज्यादा स्प्रेड करता है। ओके, यस मैम। अब यहाँ पे आपको 3 वेव्स है, मैं सिर्फ 3 वेव्स के नाम पूछूंगी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल वेव्स होते हैं, इतना याद रखना है आपको। वेदांत, Yes, ma'am. which are the 3 types of earthquake waves? P, S, and L. P waves is also known as, Longitudinal wave. S wave is also known and as, S, transverse wave. L wave is also known as. Surface wave. श्लोक, you have to repeat. मैं इसीलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आपको आज बुक में नहीं लिखना है, सिर्फ इसको याद रखना है। Yes, ma'am. श्लोक, मैं पूछू ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. How many types of earthquake waves are there? 4. Shlok, little bit louder and on your video. Ma'am, can I say? Yes, he left. Yes, Daksh, your turn. आज दक्ष को तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। Yes, ma'am. Ma'am, P waves, S waves, L waves. Yes, P waves are known as, Longitudinal waves. S wave is known as, Transverse waves. L wave is known as. Surface waves. Teerth, your turn. Yes ma'am. How many types of earthquake waves are there? P, S, L and L. P waves is known as, Longitudinal waves. S wave is known as, Transversal waves. and L wave is known as. Surface waves. Where earthquake is experienced more? Earthquake कहाँ पे होता है? In focus Epicenter. epicenter. Can I tell? Yes, Rutva. In L waves. Yes. अब what is seismic waves? Seismic waves is spread from the epicenter. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, it radiates out in all directions. Yes. Seismic waves radiate out in all the direction. Right. It was there in the diagram. Ansh, तू मुझे डेफिनेशन पढ़ के वापस सुनाएगा फोकस का और एपिसेंटर का। Yes, ma'am. The place in the crust where the movement starts is called focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. ओके, नाउ और एक पार्ट है डू यू नो वाला अर्थक्वेक में, और थोड़ा सा फिर हम वापस 2 पेज रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी देखो आपको पेज नंबर 14 में डू यू नो दिख रहा है, वो आपको रीड और लर्न करना है। दक्ष, डू यू नो वाला पढ़ो बेटा। Yes, ma'am. Do you know an earthquake is measured with a machine called a seismography?
seismograph, the magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from the strings falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake. ओके, अब अर्थक्वेक कितना था, राइट? उसका यूनिट मेजरमेंट यूनिट बोलते हैं रिक्टर स्केल, राइट? क्या बोलते हैं उसको? रिक्टर स्केल। अब ये मशीन है जिसमें ये मेजरमेंट होते हैं कि अर्थक्वेक कितने रेंज का आया, ठीक है? ये है सिस्मोग्राफ मशीन, नीचे दिख रहा है? Yes. जो मेजर करता है कि अर्थक्वेक कितने रिक्टर स्केल का आया। फर्स्ट सिस्मोग्राफ इन्वेंट किया था बाय चाइनीज एस्ट्रोनॉमर चैंग हिंग, ठीक है? और वो अर्थक्वेक को बोलता था वेदरकॉक। वो क्या बोलता था? वेदरकॉक बोलता था अर्थक्वेक को। ओके, तो अर्थक्वेक का ये जो मशीन है जो हमें हेल्प करता है, और ये जो स्केल है वो एक पर्सन के नाम से दिया गया है, रिक्टर, इसीलिए यूनिट दिया गया है रिक्टर स्केल। ये यूनिट उन्होंने ढूंढा था। तो सिस्मोग्राफ मशीन है जहां पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक का यूनिट है जो मेजर, वो रिक्टर स्केल है। जैसे कि अलग अलग होता है, 2.0 होता है तो माइल्ड होता है, 5.0 तो थोड़ा सा डैमेज होता है, 6.0 से ऊपर जितना भी वो जाता है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो क्या माना जाता है? जैसे कचबुच में था वो 7.0 से ऊपर था, ठीक है? तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब यहाँ पे आपको दो चीज अंडरलाइन करनी है इसमें रीड करने के लिए। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और दूसरा है अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। देखो कचबुच में यहाँ में दिया गया है 6.9 था। अब हम ये वाला पार्ट केस स्टडी और वो सब पढ़ेंगे। दिया ने रीड कर दिया एक बार? No, ma'am. हाँ दिया, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द पेज नंबर 14, ऊपर का जो पैराग्राफ है ना। Altered earthquakes cannot be predicted. The impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. Okay, see it is a natural disaster. तो मैंने बोला था ना earthquake फोन करके बोलेगा मैं आ रहा हूँ, सब संभल जाओ। So we can't predict. अभी मैंने बोला आप बैठे और अचानक से अर्थक्वेक आ सकता है, राइट? तो अर्थक्वेक को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। जब ये कचबुच में आया था ना, तो हमारे में ज्यादा अहमदाबाद में बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम इसलिए हुई थी, सारी बिल्डिंग गिर क्यों गई थी? क्योंकि बिल्डिंग जो होती है ना अभी सब अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं। कैसे? आपको काफी ऐसी बिल्डिंग्स होगी ना जो नीचे से पिलर होता है और पिलर के ऊपर खड़ी होती है, आप राइट? टावर्स, जितने टावर्स होते हैं ना वो, तो ये जो पिलर्स होते हैं जिसपे पूरा टावर खड़ा होता है, ये टावर को नीचे भी बहुत अर्थ के इंटीरियर सरफेस के नीचे भी उसको बहुत खड्डा खोदना पड़ता है और नीचे से उसको बेस बनाना पड़ता है। तो अहमदाबाद में जितनी भी टावर्स थी ना, एक तो पिलर बहुत छोटे छोटे किए थे, यानी कि उनकी ब्रेथ बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक है? पतले पतले ऐसे खड़े कर दिए थे। सेकंड, नीचे बहुत उन्होंने प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाया था, जिसकी वजह से जब ये वेव सिस्मिक वेव आया तो टावर इतने जोर से ऐसे झूला, तो नीचे का पिलर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? पूरा गिर जाएगा, It will fall down.
यस। और आपके पेरेंट्स को पूछना, जो सैटेलाइट में 100 फीट रोड है ना, उसमें टावर थे, तो टावर में पूरा बिल्डिंग में आधा पोर्शन गिर गया और आधा पोर्शन वही का वही रहा। सचिन टावर जो था, हम सब देखने गए थे, राइट। और एक मानसी सर्कल में मानसी जो टावर था ना, उसके टेरेस पे पूरा स्विमिंग पूल था, तो वो पानी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो टावर में वजन आ गया। जब पूरा ऐसे घूमा ना, तो पानी के वजन से वो पूरा गिर गया। तो ये सारी प्रिकॉशंस थी जो हमें नहीं पता थी पहले, अहमदाबाद में बिल्डर्स ने नहीं ध्यान दिया था। इसके बाद अभी जो भी टावर बनता है, राइट, उसमें अर्थक्वेक प्रूफ कि अगर आया तो ये गारंटी देते हैं कि आपका बिल्डिंग गिरेगा, राइट। या तो वो पिलर्स पे खड़े नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल से ही बिल्डिंग बनाते हैं। अगर पिलर करना है तो कंपलसरी बेसमेंट, बेस से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, ओके। सेकेंड, हमें सिखाया जाता है जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक होता है कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। सडनली आया बिल्डिंग में, तो आपको एक कोने में खड़े रह जाना है, क्योंकि अगर ऊपर रूफ ना गिरे, एक कॉर्नर आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारे चीज है कि फायर से दूर रहो, विंडो से दूर रहो, क्योंकि विंडो अगर पूरी हिलेगी तो कांच फूटेगा, ठीक है। पिक्चर फ्रेम से दूर रहो। जब ये सिस्मिक वेव्स अहमदाबाद में आया था, हम लोग हमारे नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, राइट, और ऊपर के जितने भी फ्लोर थे ना, वो खाली थे। तो जब ये आया, हमारे बिल्डिंग में भी यही प्रॉब्लम थी कि पिलर वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इतने जोर से वो बिल्डिंग हिला, मेरे सामने, मेरे घर के सामने वाली वॉल में मैंने इसे क्रैक होती हुई देखी, पूरी क्रैक। और मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पेरेंट्स शादी में चले गए थे और हम लोग रेडी हो रहे थे, मैं और मेरा भाई। मेरे भाई को पता चल गया कि ये अर्थक्वेक है, उसने मुझे खींचा और हम गार्डन की तरफ, ओपन एरिया, यू हैव टू रन इनटू द सरफेस, ओपन सरफेस, जहां पे चीजें आपके ऊपर गिरे नहीं। आई वॉज ब्लैंक, मुझे कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ, राइट। और हम लोग ओपन सरफेस में दौड़ के चले गए। तो ये सारी आप में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आती है तो ये करना है, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं चलता, पर यस, ऐसे माना जाता है कि एनिमल के बिहेवियर से वो उन्हें प्रेडिक्ट हो जाता है। जैसे पॉन्ड में फिश एजिटेट हो गए, जोर जोर से घूमने लगती है। स्नेक्स भी सरफेस में से आते हैं। आपके घर में अगर डॉग है तो डॉग ऑल्सो स्टार्ट बार्किंग एंड स्टार्ट रनिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है अर्थक्वेक से। यहाँ पे केस स्टडी में 2 लाइन है, सिर्फ वो आपको अंडरलाइन करनी है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसे अंडरलाइन करके रीड रखना है। मैं आपको वो 2 लाइन बता देती हूँ। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है ना बिल्डिंग की हालत कैसी है। यस मैम। फिर अगर आपने आपके बिल्डिंग की बार बार रिपेयर और रिनोवेट नहीं करा तो वो बिल्डिंग वीक हो जाती है। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो वो बिल्डिंग पहले गिर जाती है। तो ये काफी रीजंस थे, अहमदाबाद में इस रीजन से सारे बिल्डिंग्स गिर गए थे। मैम you have to write the 2 lines. You don't have to write. वहां पे मैंने रीड करना है। आज मैंने बहुत लिखने को दे दिया, इसलिए बहुत हो गया। फिर अंश मुझे पसंद नहीं करेगा, ये टीचर तो कितना लिखने को देती है, अंश ऐसा बोलेगा। एक तो स्कूल से मिलता है, फिर ये टीचर भी देती है ना। खेलने को मिलता नहीं है, बाहर जा नहीं पाते हैं अंश? नो मैम। स्कूल में भेज दिया सारी बुक्स की तूने और दक्ष ने, पीडीएफ भेज दी। मैम एसएस और गुजराती बाकी। स्कूल स्ट्रिक्ट हो गई है ना अभी। यस बुक्स बना, लास्ट ईयर तो बुक्स नहीं बनाई, अभी बनाओ बुक्स। लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी। गुड बॉय है, गुड बॉय है। पर अभी भेजो, अभी स्कूल स्ट्रिक्ट हो गई है। गूगल क्लासरूम में भेजते हैं। हाँ यस, भेजना पड़ता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। चलो नाउ क्विक समराइज, रिकैप। सीरियल में होता है ना रिकैप,
वैसे हम हमारे मेमोरी का रिकैप करते हैं, है ना। चलो, यू हैव टू रेज हैंड्स, ओके, उसमें से मैं पिक करूंगी। नेम द टू फोर्सेस ऑफ द अर्थ मूवमेंट। वो आपने क्विज गेम कभी खेली है? उसमें जो फर्स्ट बजर ऑन करता है उसको आंसर देना होता है, पता है ना। अंश ने पहले बजर ऑन कर दिया। यस अंश, वैसी गेम खेलते हैं। अंश बोलो। एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। अच्छा, आपके रेज हैंड निकाल दो। अभी दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे पहले बजर ऑन करेगा उसको आंसर देना है, ओके। What do you mean by endogenic force? अंश क्या है वो दबा के बैठा है? मैम जैसे ही पूरा क्वेश्चन बोले मैं पहले दबा दूंगा। पर अंश के बाद किया था तीर्थ, अभी सेकंड बजर जिसने किया, तीर्थ बोलो। मैम endogenic means the interior of the earth. Interior of the earth, yes, right, okay, yes. What is molten magma? What is molten magma? Yes, Vedant. Molten stone. Yes, hot molten rock. Okay. Now, how many of sudden forces are there in the endogenic force? Diya. There are three forces under the endogenic forces. Name? Earthquake, volcano, and earth landslides. Okay, okay, right. Okay. Now, what do you mean by lithospheric force? Yes, रुतवा। अंश देखो, दूंगी बजर ऐसे दबा के बैठा है वो। यस रुतवा, आप आंसर्स देख के बोल सकते हो। आपको लर्न नहीं करने को बोला है मैंने, तो टेक्स्ट बुक में से जो मैंने टिक करवाया वही पूछ रही हूँ। यस रुतवा। Lithospheric means land. बोलो। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का डेफिनेशन बोलो अंश। Yes, ma'am. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plate. Vedant, which is the perfect glossary of lithospheric plates? Lithospheric plates. The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor. Okay. अभी और एक चीज मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट ओशन वाला फ्लोर बोला ना, तो मैं और एक नेचुरल डिजास्टर आपको बताना भूल गई, तो मैं वो पहले बताती हूँ। ये प्लेट्स बोला है कि ओशन में भी हिलती है, तो ओशन में जब हिलती है और ओशन का पानी जब हिलता है तो क्या आता है? Tsunami. Yes, it is known as tsunami. It is also one of the natural disaster. Tsunami word is a Japanese word. What do you mean? Tsunami यानी कि harbor waves. What it is meaning of it? Harbor waves. जो पानी के बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं ना, ये जापानीज वर्ड है सुनामी, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। तो ये जब ओशन के नीचे की जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी जोर से हिलती है, जिसकी वजह से सिर्फ पानी में नहीं बदलाव होता है, पर वो पानी की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है। कंटिन्यूस होने से वो वेव्स ह्यूज आते हैं और वो कोस्टल एरिया में डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसको सुनामी होता है। इंडिया में आया है? मैम केरला में बहुत बार आया है। मैम आया था केरला में। यस राइट। तो चलो, सबको पता है सुनामी के बारे में, ठीक है। ये वाला आपको नहीं दिया गया, एक्चुअली वो एक एंडोजेनिक फोर्स है, पर अर्थक्वेक ओशन में आता है, इसलिए हमें नहीं दिया है, ठीक है। चलो, अभी एक लास्ट मैं पूछती हूँ, और लेट मी सी, व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? धारा।
Ma'am, the place in the crust where the movement start is called the focus. Okay, चलो. And what do you mean by seismograph? What, ma'am? Ma'am, can I? पहले अपने रेज हैंड सबने नहीं निकाले थे तो मुझे पता ही नहीं चला. दिया, चलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्मोग्राफ? चीटिंग कर रहे हो आप? मैम मैंने अभी किया था, मैंने पहले से नहीं रखा. तूने अभी किया, पर मेरे ख्याल से वेदांत या किसी ने नहीं हटाया था, है ना वेदांत? वो मैं हंस रहा है. हटाना भूल गया था. हाँ चलो दिया, सिस्मोग्राफ. Earthquake is measured with a machine called a seismograph. ओके, देखो अभी जब मैं ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी ना तो इसी तरह करना है. हाँ, बजर सिस्टम करना है ना. अंश बोलेगा हाँ, पहले मैं बजर दबा दूंगा फिर आंसर ढूंढूंगा. ओके, और तीर्थ को हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे, हम सब मिलके उसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, चलो पहले नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हाफ पार्ट है ना वो मैं एक्सप्लेन करूंगी एक्सोजेनिक फोर्स वाला, उसके बाद हम चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो देन बाय एवरीवन. कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना. तीर्थ, Bye, ma'am. यस मैम. तीर्थ समझ में आया? कैसे लगा? Bye, ma'am. अच्छा लगा. समझ में आया ना बेटा? यस मैम. ओके ओके, चलो देन एवरीवन बाय. Bye, ma'am. बाय मैम. थैंक यू मैम. वेलकम.